رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بڑی عظمت بڑی شوقت سے وہ رمضان آ پہنچا. ماشاءاللہ. معزز بزرگان اسلام و حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی متبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین آمین. ماشاءاللہ. ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے. رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان عربی لفظ ہے رمضا کے معنی لغت میں جلانے اور خاکستر کرنے کے آتے ہیں. جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسانوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. انسانی دلوں پر غلط کرتوت کی وجہ سے جو زنگ اور میل کچیل جم جاتا ہے، یہ رمضان میل اور گندگیوں سے انسان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو احکام خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا. لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان ہجری 2 کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور صوم عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ یا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے مہینے تک باقی رہا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائے تو کفارے کے طور پر اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا. بس وہی حکم ان کی اولاد کے لیے بھی ہو گیا اور مکمل 1 مہینہ روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا. سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ قدرت الہی کی جانب سے بیش بہا تحفہ اور عطیہ ہے. اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحہ بھی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے اور رمضان کے وقت اور قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے عملوں کا شوق دلاتے. چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. تمہاری نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. لہذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھاؤ. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض
खलीफा, कि जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने बेजुबान होकर कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ए मेरे रब, क्या आप जमीन में ऐसे लोगों को बनाएंगे जो जमीन पर फसाद करेंगे, आपस में खून रेज़िया करेंगे, एक दूसरे पर जुल्म, हक तलफी, बेरहमी, जिनका शेवा होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जाओ, तुम्हें क्या खबर, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे उन तमाम चीजों की खबर है जिसको तुम नहीं जानते। इसलिए उसके नेक बंदे जब खुदा की इताअत करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होकर फरिश्तों से कहता है कि देखो, ये वही आदम की औलाद है जिसके बारे में तुमने फसाद और खून रेज़ी का अंदेशा जाहिर किया था। मोहतरम हज़रात, जरा गौर कीजिए कि हम थोड़ी सी नेकी करके अल्लाह के कितने मकबूल और प्यारे बन जाते हैं, कि फरिश्तों जैसी मुकद्दस मखलूक के सामने खाली के दो जहां हमारा तज़किरा करके फख्र करते हैं। अब भी अगर हमने अपने आराम और राहत में लगकर इताअत और फरमाबरदारी में, नेकियों में गफलत शारी से काम लिया तो कितना नुकसान होगा और कितने कीमती वक्त को हम हाथ से खो देंगे। यही वजह है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। रमजान की फजीलत के बारे में बेशुमार अहादीस मनकूल है, चुनांचे बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिन व फी रिवायतिन व मा तअख्खर। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखेगा, उसके अब तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी अब तक जो गुनाह किए हैं वो भी और जो आइंदा होंगे वो भी सब माफ कर देंगे। और ये इतनी बड़ी फजीलत है कि बहुत कम किसी अमल पर इसकी खुशखबरी दी गई है। गुनाहों की माफी तो अकल तस्लीम करती है, ना करदा गुनाहों पर मगफिरत का यह अज़ीम शान ऐलान दिल को खड़कता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हदीस में हमें बतलाया जा रहा है कि ऐसे शख्स को गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाती है और पेश आने वाले गुनाहों से बचने की तौफीक का अता होना भी मगफिरत का ही दर्जा रखता है, और हम इस तौफीक को मगफिरत की बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। माशाअल्लाह। इसी तरह सैयदुल बशर वल जिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाते हुए एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सैयदुश्शुहूरी रमजान, सब महीनों का सरदार रमजान है, क्योंकि माह रमजान इतनी खुसूसियत का हामिल है जिससे यकीनन दूसरे महीने आ रही है। शब कदर, जिसको कुरान ने खैरुम मिन अल्फि शहर कहा है, वो भी इसी की गोद में पाया जाता है। किताब मुकद्दस का नुज़ूल समाए दुनिया पर इसी माह में हुआ। सवाब की कसरत, मुब्तला अज़ाब की खलाशी, शैतानों पर पाबंदी, तौफीक और इताअत जैसी नेमतों का नुज़ूल रमजान की सियादत के लिए काफी है। इन दिनों में मुसलमानों का उठना, इबादत के लिए बैठना, चलना फिरना, सोना, जागना और खाना पीना हर एक ज्यादती सवाब का बाइस होता है, और हर एक के बदले में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेइंतहा अज्र और सवाब अता फरमाते हैं। नफली इबादत का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज नमाज का सवाब 70 दर्जे बढ़ जाता है। इसी को लिसान नबूवत ने फरमाया, मन तक़र्रब फीही बिखसलतिन मिनल खैरी काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवाहु व मन अद्दा फरीदतन फीही काना अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवा। कि जो शख्स इस महीने में कोई नफली इबादत करे उसको गैर रमजान में फर्द के बराबर सवाब मिलेगा, और जिसने इस महीने में कोई फर्ज इबादत करी उसको गैर रमजान में 70 फर्दों के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, किस कदर रमजान में बंदों पर सवाब लुटाया जाता है, और खालिक कायनात जो रहमान और रहीम भी है, उनकी जात से कोई मुस्तंबात भी नहीं और कोई तअज्जुब खेज अम्र भी नहीं, क्योंकि औकात के बदलने से चीजों की कदर और कीमत भी बदल जाती है। जिस तरह सोना और चांदी पहले जमाने में कोई खास हैसियत नहीं रखते थे, आमतौर पर लोगों में राइज थी, इंसानियत में कहीं भी अजनबियत की निगाह से नहीं देखी जाती थी, लेकिन हालात बदले, तकाज़े में तगय्युर हुआ, जरूरत बनने लगी और कदर और कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। इस तरह फर्ज नमाज का सवाब भी मकाम के एतबार से मुतफावत होता है। बैतुल मक़दिस, मस्जिद नबी और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर एक वक्त की फर्ज नमाज अपने घर नमाज पढ़ने से बेहतर और अफजल है। ठीक खाली के दो जहां ने रमजान की अहमियत के पेश नजर बेइंतहा अज्र सवाब का वादा किया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे हो सके और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद उसूल जन्नत के लिए हमवार रास्ता तय कर सके। इसलिए कुर्बान जाए दीन पर और ताजदारे बता के लाए हुए मजहब पर, जिसकी फितरत में रिफ्क, नरमी, रहमत
و शफकत का मादा रखा है। रमजान का एक फर्ज 70 फराइज के बराबर है। दोस्तों, हमें कसरत सवाब के लिए बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी का सफर नहीं करना है। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, घर बैठे हमारी इबादत अजर सवाब की हकदार हो जाती है। कितना अफसोस है उन हजरात पर जो रमजान का चांद देखने के बाद भी सुस्त रहते हैं, जिनकी हरकत में तेजी पैदा नहीं होती, तलब में इजाफा नहीं होता, रमजान में भी मस्जिद से दूर रहते हैं। और कितने ही खुश नसीब है वो लोग जो एक एक साथ और एक एक लम्हे की फिक्र करते हैं, रमजान के औकात को ज़ाय नहीं होने देते। यही लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये लोग जन्नत के एक खास दरवाजे बाब रैयान से दाखिल हो गए, फरिश्ते इनका इस्तकबाल करते होंगे। बिरादरान मोहतरम, दरअसल ये महीना इबादतों का मौसम बहार है। जिस तरह हर खेती अपने मौसम में खुद फलती फूलती, इसी तरह इस महीने में इबादतें खूब बढ़ती और बंदों को इताअत की खूब तौफीक इलाही होती है। यही वजह है कि अक्सर लोग और दिनों के बानिस्बत रमजान शरीफ का बहुत एहतमाम करते हैं। काम धंधा, तिजारत और सनात, ज़राअत और काश्तकारी तो हमेशा हमें होती ही रहती है। रमजान का मुकद्दस महीना साल भर में एक मरतबा नसीब होता है। पता नहीं कि दोबारा अय्याम रमजान किसके मुकद्दर में लिखे हुए हैं और किसका मुकद्दर महरूम किया गया है, किसी को भी मालूम नहीं। बुजुर्गों और दोस्तों, रमजानुल मुबारक की एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है जिसमें आसमानी किताबें नाजिल हुई, हत्ता के सबसे आखिरी और अब्दी किताब कुरान शरीफ, जिसने तमाम पिछली किताबों को मंसूख कर दिया, पूरी दुनिया की सोती कौमों को फ़अ्आल व मुतहरिक बना दिया, वो भी इसी महीने में नाजिल हुआ। इसी खालिक कायनात ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। रमज़ानुल मुबारक ही वो मुबारक महीना है जिसमें इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान करीम नाजिल हुआ। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इंसानों की आज़ादी का परवाना सहीफों की शक्ल में पहली या तीसरी रमज़ान को मिला। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज़ादी का ये कानून ज़बूर की सूरत में 12 या 18 रमज़ान को मिला। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के नाम से 6 रमज़ान को मिला। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 13 रमज़ान को सहीफ़ा इंजील मिला। मुबारक है वो इंसान जिनकी खातिर इस महीने में, मुबारक है वो इंसान जिनकी खातिर इस महीने में कलामुल्लाह लेकर दौलत सुलह व क़याम आया। हदीस शरीफ में आया है कि रोजा और कुरान मजीद दोनों बंदों की शफाअत करेंगे। रोजा कहेगा, ए परवरदिगार, मैंने दिन के वक्त इसको खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा था, आप इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमाए। और कुरान मजीद कहेगा, मैंने रात के वक्त इसको नमाज के अंदर और तिलावत की वजह से जगाए रखा था, आप इसलिए इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमाए। इस हदीस पाक से साफ मालूम होता है कि रमजान को कुरान से किस कदर मुनासिबत और आपसी जोड़ है। यही वजह है कि हर साल हज़रत जिब्राइल आते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम से कुरान शरीफ का दौर करते थे। इसका आसान तरीका तरावी है। इसमें पहली बात तो यह है कि नमाज के बहाने कुरान पाक भी याद हो जाता है और गैर हाफिज तरावी में सुनकर भी कुरान पूरा कर सकता है। मगर मुश्किल यह है कि हम लोग तरावी बहुत समझ कर पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी है तो ये समझते हैं खुदा की पनाह किस जाल में फंस गए। मेरे दोस्तों, किस कदर गैरत और अफसोस की बात है कि साल भर में तो एक मरतबा रमजान का महीना नसीब होता है, उसमें भी 24 घंटे का अक्सर वक्त अपने ही कामों में लगा देते हैं। अगर हम थोड़ी सी मुशक्कत ही बर्दाश्त कर ले तो क्या हर्ज और नुकसान है। जब हम नमाज के लिए मस्जिद में आ ही जाते हैं तो आधा एक घंटा और सही इतनी जल्दी करके क्यों कुरान की बरकत से महरूम रहे। हजरत मौलाना अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने तहरीर में लिखा है कि रमजान जामे जमी खैरात और बरक़ात है और कुरान जामे जमे कमालात है, और शबे कदर इस महीने का खुलासा लब्बे लुबाब है। लिहाजा जो शख्स ये महीना जमईयत के साथ गुजारेगा तो तमाम साल जमईयत के साथ गुजरेंगे और खैर और बरक़ात से माला माल होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। गफलत की नींद में हमने पूरा साल गुजारा और गवा दिया। हमने 11 महीने अल्लाह के अहकाम को पामाल करके बसर किया। अब वक्त आ गया इस मुबारक महीने में उसकी तलाफी करे। हमने अल्लाह की नाफरमानियां करके अपना नाम आमाल सिया कर लिया है। अब हमारा काफिला नेकियों, आमाल सालिहा और भले कामों की तरफ रवाना होगा। अगर गुनाहों का ख्याल आता भी है तो इसे पुख्ता इरादा की तलवार से काट देंगे। अगर हमारा नफ्स और जी बुराइयों पर उभारता है तो इसे बेरहमी से कुचल डालेंगे। हाँ मेरे भाइयों, आओ अहद करें कि हमारी जिंदगी का ये महीना
نیکی اور بھلائیوں میں گزرے گا، جس میں عبادت و صدقات کے پھول کھل رہے ہوں گے، تاکہ ہمارا آقا ہمارا خدا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور اب اس دعا کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔